Hello everyone, today we will be starting with engineering mechanics. So engineering mechanics is a subject that is having a code TCE 304. Basically it is a part of engineering science. I hope you all are familiar with the word science. Basically this engineering science is subdivided into three parts. One is solid mechanics, one is fluid mechanics, one is properties of material. And solid mechanics you will be studying about solids, and in case of fluid mechanics this is a different subject you will be going through in this semester about the fluid properties and fluid effects of different forces on the fluid. And this part properties of material, in case of solid mechanics you will be studying about the properties of different solid materials, and in case of fluid you will be learning about different properties of the fluid materials. In case of solid mechanics is subdivided into two parts. One is engineering mechanics, one is SOM. What is SOM? It is strength of materials. Okay, so engineering mechanics is basically the physical science that is concerned with the state of rest or motion of a body. So engineering mechanics क्या होती है? It's a physical science that is concerned with the state of rest or motion. कोई बॉडी है उसके स्टेट ऑफ रेस्ट से उसको मतलब है और या मोशन में, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका क्या इफेक्ट आता है डिफरेंट फोर्सेस का, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्या इफेक्ट आता है जब उस पर फोर्स लगाई जाती है। तो इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर क्या इफेक्ट्स आते हैं, जब कोई बॉडी मोशन में है तब उस पर क्या इफेक्ट्स आते हैं ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। एंड वी आर वी आर डीलिंग विद द rigid bodies. We are dealing with the rigid bodies in engineering mechanics, and in case of strength of material we are dealing with deformable bodies. So what are rigid bodies and what are deformable bodies? In case of engineering mechanics we are dealing with rigid bodies. So what are rigid bodies? It is the combination of large number of particles. देखिए यहाँ पे बहुत सारे number of particles हैं, इन दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल डज नॉट चेंजेस, दिस डज नॉट चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द लोड। ये डिस्टेंस किन्हीं दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा चाहे उस पर लोड लगा हो, अगर लगता है तो उसके बाद भी वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इस टाइप की बॉडी को बोलेंगे rigid bodies. And deformable bodies क्या होती हैं? It is a combination of large number of particles in which the distance between the two particles, ये distance इसमें क्या होगा? Change होगा, changes after applying the load. जितना डिस्टेंस बिफोर लोडिंग रहेगा वो क्या होगा? चेंज होगा, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा होगा। आफ्टर अप्लाइंग दी लोड ये डिस्टेंस क्या होगा? चेंजेस। So engineering mechanics is a physical science in which we study about the rigid bodies. Okay, this is we study about the rigid bodies. I hope you all have understood what are rigid bodies and what are deformable bodies. So this is the definition here. It is a combination of large number of particles in which the distance between the two particles does not changes before and after applying the force. Okay, and in case of deformable bodies, it is a combination of large number of particles in which distance between the two particles does changes before and after applying the force. Okay, so this is part of rigid body and this is deformable bodies. Okay, now engineering mechanics is subdivided into two parts. One is statics and other one is dynamic. So what are static? We are concerned with the bodies at rest, and in case of dynamic we are concerned with the bodies of that are in motion. So engineering mechanics have two parts, one is static and dynamic is subdivided into two parts, one is kinematics and one is kinetic. अब देखिए अगर आपको ये समझाया जाए कि अगर स्टैटिक का केस कैसा होगा, सपोज ये बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी रखी गई है और इस पर कोई फोर्स लगाया गया है, फोर्स लगाया मानो 10 न्यूटन का, और इस पे फ्रिक्शन हुआ, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ओके,
फ्रिक्शन फोर्स अगर इस पर 10 न्यूटन का ही लगा तो क्या ये बॉडी अपनी जगह से मूव करेगी? नहीं करेगी। सपोज ये बॉडी यहाँ पर रखी गई है इस सरफेस पे, अगर इस पर 10 इतना फोर्स लगाया जाए कि इतना ही इसको रेजिस्ट करे, फ्रिक्शन से क्या हुआ, अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया तो उतना ही फ्रिक्शन से वो वापस हो गया। देखिए 10 न्यूटन इधर है और 10 न्यूटन इधर है, तो ये क्या होगा, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बॉडी पे, नेट फोर्स इज 0। तो ये बॉडी क्या है, स्टैटिक है, रेस्ट पे है, चाहे उस पर फोर्स लगा, जरूरी नहीं कि कोई बॉडी है उसमें अगर फोर्स नहीं लग रहा तभी वो स्टैटिक होगी, बट उस पर फोर्स लग रहा है और उस पर नेट फोर्स जो है 0 होगी, तभी वो बॉडी क्या होगी, स्टैटिक होगी। एंड इन केस ऑफ डायनेमिक, डायनेमिक का केस समझने के लिए, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी है और उस पर अब जो एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर लगाई है, मैंने लगाई 20 न्यूटन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 10 न्यूटन की इसी सरफेस की, अगर तो क्या होगा, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स विल बी 10 न्यूटन हो जाएगी। 20 माइनस 10, ये इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो क्या होगा, नेट फोर्स विल बी 10 न्यूटन। तो अब ये बॉडी मूव करेगी, दैट इज द केस ऑफ डायनेमिक, द बॉडी इज एट मोशन। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिससे हमें कॉज ऑफ मोशन से मतलब नहीं होता, द कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडर्ड। कैसे, अब कॉज ऑफ मोशन क्या है, जब कोई बॉडी, सपोज ये बॉडी है, अब कॉज क्या है, इस अगर ये मूव होगी तो कैसे होगी, उसका कॉज क्या होगा, उसका कॉज क्या होगा, अगर कोई फोर्स इस पे एक्ट करती है तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स एक कॉज है जिससे मोशन होता है। अब मोशन में क्या क्या पार्ट्स है हमें कंसीडर, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अब जब इस पे फोर्स लगेगी तब इस पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगा। एंड इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स वी आर नॉट कंसर्न विद द कॉज ऑफ फोर्स, वी आर ओनली कंसर्न विद द कॉज की वजह से जो हुआ, फोर्स की वजह से जो हुआ, उससे हमें मतलब है, दैट इज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो जहाँ पर हम खाली कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे तो वो क्या होगी, काइनेमेटिक्स की स्टडी होगी, जहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे और मोशंस किससे हुआ और क्या क्यों हुआ, ये सब की जानकारी हमें मिलेगी काइनेटिक्स में। ओके, तो डिफरेंस समझ में आया काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमें कॉज ऑफ मोशन से मतलब नहीं होता, बट वहाँ पर काइनेटिक्स में मतलब होता है। ओके, अब जब हम इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है हमेशा से वो आपको पता है, दैट इज न्यूटन। अब न्यूटन ने क्या हुआ था, न्यूटन ने कुछ लॉज बताए थे, ये सब आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। तो न्यूटन के 3 लॉ जो बहुत फेमस है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, द बॉडी continues to remain at state of rest or motion until and unless an external force is applied to it। अब कोई बॉडी अगर मोशन में है और या रेस्ट पे है, अब ये देखिए बॉडी है, अगर ये मोशन में है, अभी ये चलो मानो ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है मतलब इस पे नेट फोर्स कितनी है, 0 है। अब अगर ये रेस्ट पे है तो बॉडी कंटिन्यूस, अब ये हमेशा रेस्ट पे रहेगी, कब तक, अनटिल एंड अनलेस, जब तक इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दी जाए, अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अब इस पे अनबैलेंस क्यों कहा गया है, अगर वो बैलेंस हो गई तो ये क्या मूव करेगी, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में देखा था 10 न्यूटन इधर लग रहा था और 10 न्यूटन इधर जा रहा था, अगर वो बैलेंस फोर्स हो गई तो क्या होगा, ये तो स्टैटिक रहेगा। अब स्टैटिक रहेगा मतलब रेस्ट पे रहेगा। अब वी आर सेइंग दैट अनटिल एंड अनलेस, अगर इसको मूव कराना है, रेस्ट बॉडी को मूव कराना है, रेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स देनी पड़ेगी। अनबैलेंस कब होगी वो, जब ये मान लो 10 से ऊपर हो जाएगा, मान लो ये 15 हो गया या 20 हो गया कुछ, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 15 न्यूटन, अब ये अगर 15 न्यूटन की फोर्स इस पे लगेगी और 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लग के इस पे क्या होगा, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन। अब ये क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, until and unless an unbalanced force is applied।
ये तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं इस पे अनबैलेंस फोर्स ना लगा दूं, ठीक है। और ये कब तक, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अभी। कब तक रहेगी, अगर कोई उसको until and unless an external force is applied, अब कोई फोर्स इसको रोकेगी तो ये क्या होगा, रुक जाएगी। अनबैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब अगर ये 10 न्यूटन की स्पीड से चल रहा है तो उसे 20 न्यूटन या 10 से ज़्यादा फोर्स से इसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब इसको समझने के लिए अगर मैं आपको ये समझाऊं कि सेकेंड लॉ का क्या मतलब है। सपोज ये एक फुटबॉल है, ठीक है। अब ये फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है। अब ये अगर आपकी तरफ आ रही है तो आपको पता है इस बॉडी में क्या होगा। अब ये बॉडी है, इसका क्या होगा, मास होगा कुछ, और मास होगा। अगर मैंने कहा ये आपकी तरफ आ रही है तो इस पर क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर आप खड़े हो और ये आपको बॉल आपकी तरफ आ रही है, तो ये अगर इस पर मास भी है और वेलोसिटी भी है तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब अगर ये फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है किसी मोमेंटम के साथ, अब इस पर जब मास भी है और वेलोसिटी भी है तो क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। अब आपने क्या किया, इस बॉल को क्या किया, बहुत जोर से किक मारा। अब जब आपने इसको किक मारा तो ये क्या होगा, और तेजी से वापस जाएगी। अब और तेजी से वापस जाएगी, मतलब इसकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या कर दी आपने, इंक्रीज कर दी। मास तो उसका सेम ही है, वेलोसिटी आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो मोमेंटम भी इंक्रीज कर गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम देखो पहले कम था, आपने और फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम बढ़ गया। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई। तो जितने मोमेंटम से बॉल आपकी तरफ आ रही थी आपने उसका मोमेंटम बढ़ाने के लिए क्या किया, उसको फोर्स अप्लाइड किया। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को चेंज कैसे करा जा सकता है, उसको ज्यादा फोर्स अप्लाइड करके। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए अगर आप किसी बॉडी पे अगर आप बॉल लेते हैं, सपोज आपके पास एक बॉल है, अब आपने बॉल को क्या किया, वॉल पे, अब ये बॉल है, आपने वॉल पे इसको थ्रो किया। अब आप बॉल क्या हो गई, आपने इसको अगर जितनी फोर्सेस को भेजोगे वॉल पे टकरा के क्या होगा, उतनी ही फोर्स से क्या होगी, वो वापस आएगी। तो ये हर केस में होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी फोर्स से मैंने बॉल को दीवार पे मारा है, दीवार ने क्या किया, उतनी ही फोर्स उस बॉल को वापस दे के मेरी तरफ वापस फेंका। तो क्या हो गया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये फोर्स क्या था, मैंने फेंकी तो ये क्या हो गया, एक्शन, और उसका रिएक्शन क्या हुआ, जो बॉल ने उसको वापस मेरी तरफ फेंका। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। अब जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको क्या करना है, अब जब कुछ भी चीज हम पढ़ेंगे उसके सर्टेन अजम्पशंस होते हैं। क्या होते हैं, अजम्पशंस। So we will be talking about different types of assumptions that are used in engineering mechanics. One, first of all, we will talk about the particles. यहाँ पर एक पार्टिकल लिखा है, तो पार्टिकल क्या है, हमको अज्यूम करना है कि वी हैव टू कंसिडर ऑल द बॉडी एज अ सिंगल पार्टिकल। अब देखिए होता क्या है, जब आपने अपने साइंस में क्वेश्चंस किए होंगे, साइंस में आप सपोज ये क्वेश्चन था कि ये कार है, सपोज एक कार है। अब ये कार एक दूसरी कार से टकराई, ठीक है। अब ये कार एक दूसरी कार से टकराई है तो क्या होगा, यहाँ पर कोलिजन हुआ तो इसकी ये क्या होगा, ये फ्रंट, इसका फ्रंट ये टकराया आपस में। बट हम क्या अज्यूम करते हैं, क्या ये चीज़ इसका बैक सीट वाला बैक पार्ट जो है, ये बोनेट,
ये कैसे टकरा है, नहीं टकरा है, ओनली क्या हुआ, फ्रंट पार्ट टकरा है। बट हम जब इसको सॉल्व करते हैं कि कितनी फोर्स से, कितनी वेलोसिटी से ये कार आ रही थी, कितनी फोर्स से ये इस पर कोलाइड हुई, ये सब हम कंसीडर कब करते हैं, जब हम इसे अज्यूम करते हैं ये एक कार है, हम मानते हैं ये एक कार है, ये कार 1 है, ये दूसरी कार से टकराई, दैट इज C2, ये सेकंड कार है, ये कार 1 है या कार 2 है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, पूरी कार को एक कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल मान के और दूसरी कार को भी एक कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल मान के एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये क्या है, एक अजम्पशन है। दिस इज द अजम्पशन ऑफ द सब्जेक्ट, वी कंसीडर ऑल द बॉडी एज अ सिंगल पार्टिकल। हम पूरी बॉडी को एक पार्टिकल अज्यूम करते हैं, तब जाके हम सोल्यूशन करते हैं किसी भी चीज़ का। ओके, तो पहला एजम्पशन समझ में आ गया कि ये एक एजम्पशन यूज हुआ है इस सब्जेक्ट में। दूसरा है कि बॉडी विल बी रिजिड। ये मैंने आपको बता दिया कि बॉडीज कैसी होंगी, रिजिड होंगी। जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ये जो बॉडी है, ये कार है, इसके बीच के ये दो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल विल नॉट चेंज। ओके, तो ये दूसरा अजम्पशन है कि हमें हर बार जो बॉडीज माननी है वो कैसी माननी है, रिजिड माननी है। थर्ड जो है, थर्ड दैट इज पॉइंट लोड। अब इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल है। सपोज ये बेड है, सपोज ये बेड है और इस बेड पे आप लेटे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर लेटे हो इस बेड पे, सो आपका वेट है, सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव 70 kg ऑफ वेट। अब ये बेड पे जो आप लेटे हो, इस बेड पे क्या है, अब आपकी जो लोडिंग है वो क्या है, ये बेड है। अब ये लोडिंग आप 70 kg हो, तो 70 kg तो हम क्या मान रहे हैं, आपका वेट यहाँ से भी यहाँ पे सब जगह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे कहीं पर ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा, तो ये ऐसे लग रहा है। बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम अज्यूम करते हैं कि जो ये बॉडी कहीं पे भी है, ये देखिए आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उस बेड पे लेटे हो, सो वी अज्यूम दैट द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट। ये बॉडी का जो पूरा वेट है ये किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज CG, इसके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सपोज वेयर वी आर लाइंग ऑन द बेड, ऑल द बॉडी लोड पॉइंट्स एट द सेंटर, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट लोड। सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा ये, ठीक है। अब ये आपका वेट पूरा हेड से लेकर लेग तक है, ये पूरा यहाँ पर लग रहा था, बट ये एजम्पशन है सब्जेक्ट का कि हम अज्यूम करते हैं ये पूरा 70 kg एक पॉइंट पे लग रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, उस पॉइंट पे लगेगा आपका ये पूरा भी। तो ये आपके सब्जेक्ट के डिफरेंट अजम्पशंस हो गए। तो आई होप ये आज के लेक्चर में ये क्लियर हो गया हो कि इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू था कि सब्जेक्ट किसका पार्ट है। ये साइंस में आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा ओवरव्यू इस सब्जेक्ट का। अब आगे जाके हम डिफरेंट चीज़ों भी देखेंगे इस सब्जेक्ट्स में। न्यूटन्स के लॉ को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा, ये पूरा बताया कि इसके कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड का पार्ट अब अलग, फ्लूइड मैकेनिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, ये आपको वहाँ पर इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। और हम अभी वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम पे भी आएंगे बट वो नेक्स्ट सेम में आएगा। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 भी आएगा और स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 भी आएगा, ठीक है। तो अभी हम खाली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे कंसंट्रेट करते हैं। आई होप जितनी चीज़ें मैंने आज बताई आप इनको नोट डाउन करेंगे और इनको रिवाइज करेंगे एक बार। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।